चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. Right, at the moment with us from the Congress, a very dear old friend, Mr. Rakesh Shetty. Rakesh Shetty साहब नमस्कार. नमस्कार राजू जी, प्रदीप जी. नमस्कार सर. वंदे मातरम. How are you? How are you, sir? He's on a big campaign now, which includes the Ambanis. No, he has the heart of a lion, Mr. Rakesh Shetty. Shetty साहब, so Rahul Gandhi ji is standing from Wayanad only. Sir, हम तो expect कर रहे थे कि आप. Actually, a list of 39 candidates have been declared, and one of them is Rahul ji. He is contesting from the same old constituency from Wayanad. Sir, we expected him to stand from Amethi. Sir, Amethi से खड़े होते तो क्या मजा आ जाता सर. आगे आगे देखते होता है क्या. That will be wonderful. That will be wonderful. I hope it happens. I really and truly hope it happens that Rahul Gandhi stands from Amethi as well, which will be fantastic. And I hope Priyanka ji will stand from Raebareli or somebody else from Raebareli. Let's see. There is more surprises to be unfold. Fantastic. अच्छा सर, ये अभी बात चल रही है. सबसे पहले बात यहाँ पर हुई थी हमारे शो के दौरान. सबसे पहले यहीं पर इसकी बातचीत हुई थी. मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पता नहीं आपको इस विषय के बारे में कुछ मालूम है कि नहीं है, और वेदर और नॉट यू आर ऑथराइज्ड टू से एनीथिंग अबाउट दिस. सुनने में ये आया है, और पहले भी मतलब एक तो इस बात को कोई 15 दिन हो गए कि आदरणीय सामान्य बहन जी यानी मायावती जी से बातचीत चल रही है. सोनिया जी की मायावती जी से बातचीत हुई है और उनको कहा गया है किसी भी तरीके से उनको कन्विंस करके इंडिया अलायंस में लाया जाए. क्या ऐसा आपने भी सुना है सर राकेश शेट्टी साहब? देखिए, नेचुरल है कि 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी को शानदार जीत मिली थी, तब हम सबने देखा कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पे जब वोट मांगा गया तो जितने लोग वोटिंग पोल पे आए तो 37% के आसपास वोटिंग उनको मिला. मतलब 63% उनके विरुद्ध वोट गया. और नेचुरली बात यह है कि जो अपोजिशन है उनके जो वोट है वो बढ़ रहे. तो कांग्रेस हो या इंडिया अलायंस हो या महाविकास आघाड़ी हो, हमारा तो ये प्रयास होगा कि मैक्सिमम जितने अपोजिशन में पार्टियां है उनको इकट्ठा लाए, एक साथ लाए, ताकि हमारा जो वोट है, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोग वोट डाल रहे, वो डिवाइड ना हो. और यस, मायावती जी का अब हम सब जानते हैं कि एक रिकॉर्ड रहा है कि हर बार वो अपनी जितने खासदार है सभी सीट्स पे वो लड़ाती है और एक अच्छा खासा शेयर उनको जाता है. तो ये प्रयत्न तो बिल्कुल रहेगा पार्टी की ओर से, इंडिया अलायंस के ओर से, कि मायावती जी इंडिया अलायंस में शामिल. नो, व्हाट आई हैव हर्ड इज दैट दे हैव स्पोकन ऑन द फोन. सोनिया जी और मायावती जी की बातचीत भी हुई है इस विषय में, और ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं. आई हेट दैट वर्ड, अटकलें लगाई जा रही हैं. I hope you don't mind my using it, but for want of a better word, I'm using it. That there is a possibility that Mayawati ji may be projected as the prime ministerial face, PM face of the India Alliance, of Dalit and a woman, as the prime ministerial face of the India Alliance. Have you heard anything like that, Shetty sir? Too early to comment on that as a spokesperson. Nothing concrete, but yeah, there is many speculation going on, not on making her the prime ministerial candidate, but doing some alliance, working out with her. And I have also been told from Delhi that the announcement is likely to come as early as tomorrow. That's what I've been told. See, we are all waiting for code of conduct. See, what happens is, you are well aware ki how today Modi government is misusing ED and CBI and income tax, and there are so many people who wants to join Congress and India Alliance, but they are all waiting for the right moment and right time, because after code of conduct we believe that election commission, then ED, CBI or income tax will act as an autonomous body. So we hope that after that you will see many people shifting sides also. Right, Pradeep ji. You know, Rakesh Shetty ji, it is going to be a game changer. Rahul Gandhi ji ने जिस प्रकार से अनाउंस कर दिया कि पहली नौकरी पक्की, 1 करोड़ लोगों को, 1 crore people, पहली नौकरी पक्की, you will get per annum 1 lakh. He is going to amend the Apprentice Act
and see that the young kids, the graduates coming out from colleges and diploma holders are given assured 1-year jobs. Now this is going to be a game changer along with जातीय जनगणना and MSP. तो आपने युवाओं के लिए, फार्मर्स के लिए और जो दलित ओबीसी है उनके लिए आपने तो क्लियर कट एक रेवोल्यूशन और गेम चेंजिंग एक क्या, हाउ डू यू थिंक आगे जाके बहुत 2024 में गेम चेंजर होगा शेट्टी साहब? See, I think the schemes what Rahul ji announced is fabulous because 30 lakhs posts are vacant. 30 lakhs posts in central government are vacant, and he promised that as soon as we come in power, we are going to fill that post. So, जो बेकारी का मुद्दा है वो वहां से खत्म होना शुरू हो जाएगा. And he promised one more thing: apprenticeship for graduates that is worth 1 lakh rupees for 12 months. So I think it's a very great amount for whoever is a graduate who comes out from the college. He can start his own business or he can join some firm with that. And I think this is a very, very, very constructive decision which we have taken. And in future we'll see. And whichever promises Rahul ji did in Himachal or in Karnataka or in Hyderabad, Telangana, we have promised and we have delivered it. You know, शेट्टी साहब, दूसरा आगे जाके बीजेपी is accusing you that you are saying that ये डिक्टेटर है, डिक्टेटोरियल अप्रोच है इनका, टोटलिटेरियन अप्रोच है, ऑटोक्रेटिक अप्रोच है. मोदी जी एनफोर्समेंट एजेंसीज को यूटिलाइज करके डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं ऑपोजिशन को, एंड यू शेड एग्जांपल्स. बट बीजेपी टुडे शोड prove that the Congress only talks about this, but when they rule, they are more bigger dictators. They have shouted out that 90 times, 90 बार आपने elected सरकार को गिराया, elected governments को आपने गिराया. During the entire tenure of 60, 65, 70 years, you have destabilized elected government 90 times, शेट्टी साहब. तो it's not an exception that अभी आप कह रहे हो कि dictatorship only is in the BJP. Now, how are you going to justify your 60 or 70 years, Shetty sir? See, whatever our past leader have done or anything has happened, we are not accountable for that. Let us talk about this 20 years, 10 years of UPA 1 and 2 and 10 years of Narendra Modi ji. Now, we all know how Narendra Modi ji, when he was in opposition, the entire BJP spoke about Adarsh scam. Narendra Modi spoke about irrigation scam. He spoke about Praful Patel having links with Dawood Ibrahim. So this all were there, and as soon as these people joined BJP's alliance or NCP or Shiv Sena, Shindegarh, we see that these people are being awarded and being sent to Rajya Sabha. When, if you remember, in Maharashtra, when Adarsh Gotala, the scam came up and some accusations were made on Ashok Chavan, immediately Congress High Command ordered Ashok Chavan to step down from Chief Minister, and Prithviraj Chavan took up as a Chief Minister. But today Narendra Modi, immediately he has bought, we call it a Shwet Patra in the Parliament. In that they have mentioned Adarsh as a Gotala. And the prime accused person, very next day he comes to joins BJP and you reward him with Rajya Sabha. I think the entire country is watching it. Yeah, that is quite ironical, isn't it? A white paper on the UPA which mentions the Adarsh housing scam, and the so-called main accused of the Adarsh housing scam is now a Rajya Sabha member of the BJP. Now here there is something very interesting. Mr. Hemanta Biswa Sarma, formerly of the Congress, who appeared in a conference of a television channel today, a television channel which is known for attacking the Congress all the time, known for supporting the BJP all the time, known for even attacking minorities most of the time. Mr. Hemanta Biswa Sarma said when he was asked how many seats do you think the Congress will win this time, he said how many players are there in a cricket team. So the anchor, who is known for his militant views against the Congress, said 11. He said, I think they should win 11, but in all likelihood they will win about 30 or 40. And after the next election, the Congress will become a regional party. ये ऐसा हेमंत बिस्वा शर्मा साहब ने कहा है. इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे सर?
बिल्कुल. See, this Hemant Vishwa Sharma was formerly with the Congress. Yes, he was. He was a senior minister there. Yes. In 2014, Bharatiya Janata Party, Amit Shah took a press conference against him. Yes. And said that he is corrupt, and ED had issued notice and there was investigation going on. Immediately after the state election was announced, we had dropped him from the ministry. He joined BJP and BJP made him the CM candidate, and now he is Chief Minister of Bharatiya Janata Party. Means it starts from Hemant Vishwa Sharma, then it comes to Ajit Pawar, where Narendra Modi himself in Bhopal rally announces about 70,000 irrigation scam, and after 4 days the same Ajit Pawar, who was supposed to go in jail, he and Sunil Tatkare, both prime accused, their cases are cleared, and then they joined Bharatiya Janata Party's alliance and made the deputy chief minister. So the entire scam which is going on like this, people are watching it, and the Godi media is not talking about it. No one is questioning this. And today, when which is very strange, isn't it? Which Yeah, is very, it is very very strange, because I'll tell you what. Why did Pradeep ji ask you about the number of governments that were dismissed by the Congress government when the Congress was in power of the center? Because that is part of the narrative which is now all over the place in the corporate media. So they are talking about what took place during the time of Mrs. Indira Gandhi, during the time of Pandit Nehru. Lal Bahadur Shastri ji did not have such a big tenure to dismiss any government at all. No government was dismissed during Shastri ji's time. So my point is, why don't they talk about this? भाई आपके व्हाइट पेपर में लिखा है यार कि आदर्श हाउसिंग स्कैम था कांग्रेस सरकार के दौरान, और अशोक चौहान जी आज की तारीख में आपके सम्माननीय राज्यसभा के मेंबर है. Now, Pradeep ji, I would like to give you some data. No media is talking about it. Now, if you see about the India rating, today we have been rated number 1 in fake information and fake news, sir. Now, I'll just give you 4 examples. One is about when जब राम मंदिर अयोध्या उद्घाटन हुआ जी, तब सब सोशल मीडिया में प्रभु श्री राम जी का पिक्चर लेजर लाइट के थ्रू बुर्ज खलीफा के ऊपर दिखाया गया. सबने बोला वाह वाह बहुत अच्छी बात है कि प्रभु श्री राम का लेजर लाइट पे बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग के ऊपर. अगले दिन खंडन आ गया और पता चला कि ये झूठ है, फेक न्यूज है. सेकेंडली, जब नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप में वो टूरिज्म प्रमोट करने गए थे, तब इटालियन प्राइम मिनिस्टर का वीडियो आ गया, पॉपअप कर दिया जॉर्जियो मिलानी का, और उसमें बताया कि वो बीच में स्ट्रोलिंग कर रही है बिकॉज नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे कर रहा है. और अगले दिन उन्होंने खंडन कर दिया, बोला ये फेक न्यूज है. तीसरा, वर्ल्ड कप चल रहा था तब दिखाया गया कि पूरा क्राउड हनुमान चालीसा बोल रहा है. अगले दिन पता चल जाता है, और जी न्यूज एंड एबीपी न्यूज, इतने बड़े न्यूज चैनल्स ये क्लिप चला रहे थे कि पीपल आर चांटिंग हनुमान चालीसा. अगले दिन पता चल जाता है कि फेक न्यूज है. एंड वेरी वेरी शॉकिंग, आई विल टेल यू, दिल्ली में एक महिला का रेप और हत्या होती है. इसको फेक न्यूज डॉक्टरेट चलाते हैं कि मेतई समाज के लोगों ने ये किया है करके, और उसके बाद वायलेंस शुरू हो जाता है मणिपुर में. और हम सब जानते हैं 200 लोगों की जान गई. कुकी समाज के 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके हत्या किया गया. मतलब वेयर आर वी गोइंग? एंड सेकेंडली, नाउ यू टॉक अबाउट विश्व गुरु बन गया एंड मोदी जी का सब रैंकिंग बढ़ गया, बट रियल रैंकिंग आपके सामने मैं आज रखना चाहता हूं. आज वर्ल्ड फ्री प्रेस इंडेक्स 180 देशों में अपना रैंकिंग 161 है. मतलब वर्ल्ड इंडेक्स है ये, वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स. इसमें अगर 161 रैंकिंग है आउट ऑफ 180 कंट्रीज, दैट मीन्स कितने पीछे हम. अच्छा, वर्ल्ड जीडीपी पर कैपिटा इनकम में 195 कंट्रीज है, उसमें हमारा पोजीशन 143 है. आउट ऑफ 195 143. तो इधर भी नहीं हम ये कर रहे. हमारे प्रधानमंत्री
गरीब कल्याण अन्न योजना आज 81 करोड़ लोगों को खुद गवर्नमेंट कह रही है, खुद प्रधानमंत्री कह रहे कि हमें मुफ्त का राशन देना पड़ रहा है। हमारा पॉपुलेशन 140 करोड़ है, उसमें से 80 करोड़ लोगों को अगर राशन देना पड़ रहा है, क्या माने कि देश प्रगति कर रहा है। हमारे देश के ऊपर कर्जा 1947 से लेके 2014 तक 55 लाख करोड़ था। आपने 2014 से 2024 तक 100 लाख करोड़ लिया। टुडे अगर आप देखते हो 155 लाख करोड़ कुल कर्जा हो गया है। मतलब जितना ये 70 साल में कर्जा लिया उसका डबल आपने सिर्फ 10 साल में आपने लिया। और देश आज पूछना चाहता है प्रधानमंत्री जी से कि आपने ये 100 लाख करोड़ रुपया ये 10 साल में ये पैसा किधर गया। मुझे जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहेंगे कि डेवलपमेंट में ये पैसा लगा, बड़े बड़े सड़क बने, बट जितने सड़क बने आपको याद दिला दूं ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बने। जो भी बड़े सड़क बने इसमें सरकार का 1 रुपया नहीं लगा है। प्राइवेट कंपनी आज ये सड़क बना रहे, इसके बाद यहाँ पे टोल नाका है और आगे 50-100 साल तक टोल वसूला जाएगा। तो माय क्वेश्चन इज कि जब देश का हर एक पैरामीटर में हम इतने पीछे गए और देश के ऊपर इतना कर्जा चढ़ गया, उसके बाद भी इस देश का पेट्रोल हो, डीजल हो या एलपीजी हो, सबका भाव दुगना हो चुका है। पेट्रोल जो 60 रुपया का था 100 के ऊपर हो गया है। 106 सर, 106 हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ एलपीजी गैस सिलेंडर जो 500 रुपए का था वो 1200 पे चला गया। कल उन्होंने 100 रुपया कम किया क्योंकि इलेक्शन था। और मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा कि इंडिया इज इन क्राइसिस। कब कहा? जब यूएस प्रति डॉलर कीमत हो गया था 50 रुपया। आज क्या है? 83 या और ब्लैक में 88। इसको कहेंगे आत्मनिर्भर भारत। मतलब 50 रुपया में जब था तो इंडिया इज इन क्राइसिस और आज 83 में आत्मनिर्भर भारत। 83 इज द सेलिंग प्राइस, 88 इज द बाइंग प्राइस। तो जस्ट इमेजिन क्या हुआ। कल आपको एक बहुत मजे की बात बोलता हूं, टेक इट इन अ ह्यूमर सेंस। कल वो गए कलकत्ता और वहां पे कहा, क्योंकि आपको जानते कि प्रधानमंत्री जही कहां पे भी जाते वहां से एक अपना पुराना कनेक्शन ढूंढ लेते जी। उन्होंने कलकत्ता के लोगों को कहा कि मैं जब बचपन में यहाँ पे आया था तब मेरे को जिज्ञासा हुई कि मैं मेट्रो देखूं। तो उन्होंने कहा कि मैं बचपन में गया था तो मैंने रिसर्च किया। उनका जन्म हुआ 1950 में और वहां पे जो आप देखोगे कि जब नरेंद्र मोदी वो कलकत्ता में जो पहला मेट्रो स्टेशन हुआ वो 1984 में हुआ सर जी। मतलब नरेंद्र मोदी जी अगर पहले ही साल पहुंचे तो उनका उम्र था 34। अब बताओ 34 में कोई आदमी कैसा बोल सकता कि मैं बचपन में आया था। 34 में तो आदमी शादी होकर बच्चे हो जाते हैं। तो ये शेडी साहब, बट डू यू थिंक यू गिव अ चांस? मेरा भारत मेरा परिवार, मेरा भारत मेरा परिवार, और पूरे बीजेपी के टॉप लीडर्स सब अपने ट्विटर अकाउंट में बोला कि मोदी परिवार मोदी परिवार। तो जस्ट गिव्स अस, हम लोग जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स है वो हम लोग पीछे जाते तो मतलब खून के मौत के सौदागर, चाय वाला, चौकीदार चोर है, अब परिवार नहीं है और दे आर कैपिटलाइजिंग इट। I know, do you think this adversity has been turned into opportunity? How do you see this, Shelly sir? Sir, election is not fought on Instagram and Twitter, sir. The reality is कि आज small business houses, आप किसी से भी बात कर लो, वो सब आपको बोलेंगे कि हमारे पास आज बिजनेस नहीं है, बिजनेस कम हो चुका है और इन्फ्लेशन बहुत बढ़ चुका है। मतलब लेबर कॉस्ट बढ़ चुका है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बढ़ चुका है और उस हिसाब से बिजनेस नहीं है। इस देश में अगर कोई प्रगति कर रहा है तो वो है गौतम अदानी। $8 बिलियन का बिजनेस था सर 2013 में। वर्ल्ड में इनका 630th नंबर था सर रिचेस्ट मैन में फोर्ब्स के हिसाब से। आज तीसरे नंबर पे आ गया है और
$83 बिलियन का बिजनेस हो चुका है सर। मतलब गौतम अदानी 18 टाइम्स बड़ा हो चुका है 10 साल में। इतना ग्रोथ रेट ना मैकडोनल्ड्स का है, ना फेसबुक का है, ना ट्विटर, किसी का इतना बड़ा ग्रोथ रेट नहीं है सर। एंड ये ग्रोथ रेट इसलिए है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का ये नारा है कि तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। और ये अब सिद्ध हो गया क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अब नरेंद्र मोदी सरकार को आदेश दिया है कि आपको जो इलेक्ट्रल बॉन्ड में आपको जो 10,000 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड मिला है, ये किसने दिया, इसका नाम आपको जारी करना पड़ेगा। और आज आप देख लीजिए कि एसबीआई आज ये इंफॉर्मेशन देने से टोल मटोल कर रहा है, मगर बहुत जल्द इनको ये जानकारी आपको you will have to give this information to the people and to the court, and you will have to explain why Bharatiya Janata Party was given 10,000 crore rupees and what is the benefit you have got. तो शेट्टी साहब, यू डोंट बिलीव इन, आपने अंडरग्राउंड मेट्रो के बात किया, मोदी जी उसका क्रेडिट ले रहे हैं कि दैट इज मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। बोले कि सी प्लेन फर्स्ट टाइम इन इंडिया, सी प्लेन जो है फर्स्ट टाइम इन इंडिया मोदी जी ने लाया। गंगा विलास क्रूज, गंगा से जो क्रूज होगा पूरा टचिंग बे ऑफ बंगाल, बोले मोदी जी ने किया। मेट्रो अंडरग्राउंड वाटर मेट्रो, बोले मोदी जी, तो मोदी जी है तो ही मुमकिन है। शेट्टी साहब, विरासत विकास, विरासत से विकास, ही सेज विरासत से विकास। शेट्टी साहब, See, Narendra Modi ji is known to take credit of whatever other peoples have done. आप इसरो की बात कर लो, उधर भी आपको नरेंद्र मोदी जी दिखेंगे क्योंकि उनका कुछ ना कुछ योगदान है। वर्ल्ड कप में पहुंच गए थे फाइनल्स में, अगर हम जीत जाते उसका भी क्रेडिट नरेंद्र मोदी जी ले लेंगे। उनका एक हमारे यहाँ पे कुमार केतकर करके पत्रकार थे, बाद में कांग्रेस ने इनको राज्यसभा में भेजा। उन्होंने एक आरटीआई डाला सर। नरेंद्र मोदी जी यूएस में भाषण में कहा कि इंडिया में हर साल एक नया आईआईटी, आईएम और एम्स बनता है। आरटीआई जानकारी में लोकसभा में उनको राज्यसभा में इंफॉर्मेशन मिला कि 2019 से 24 के बीच में एक भी नया ना आईआईटी बना, ना एम्स बना, ना आईएम बना। और नरेंद्र मोदी जी ने एक भाषण में कहा कि दरभंगा में उन्होंने एम्स बना। आप सबने पिक्चर देखा होगा कि वहां के किसान झाड़ में, मतलब घास में कुछ ढूंढ रहे थे। कोई पत्रकार ने पूछा कि क्या ढूंढ रहे, बोले घास में हम ढूंढ रहे कि वो प्रधानमंत्री जी ने जो एम्स बनाया वो कहां पे। तो इस तरीके का प्रोपेगेंडा मशीनरी नरेंद्र मोदी जी चलाते और वो जल्द लोगों के बीच में आज इतने जो बोखलाए गए, कल भी वो एक न्यूज चैनल में थे, तो जो ही इज लैकिंग कॉन्फिडेंस, दैट इज द रीजन बिफोर द कोड ऑफ कंडक्ट ही हैज रिलीज्ड द लिस्ट ऑफ फर्स्ट फ्यू कैंडिडेट्स नेम। नहीं तो नरेंद्र मोदी जी कभी भी ऐसा पहल नहीं करते हैं और उनका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। इसलिए उन्होंने बिहार में नीतीश कुमार जी को अपने बाजू लेके आए, हेमंत हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेजने का काम किया। अरविंद केजरीवाल के ऊपर तमाम प्रेशर वो लगा रहे, रोज समन के ऊपर समन भेज रहे। तो अगर उनको अपने काम पे विश्वास था और क्या अगर एलपीजी उनका गांव-गांव में पहुंच रहा होता, नल गली-गली पहुंचा होता, तो वो आज वो जो एक रथ बनाकर गवर्नमेंट ऑफिसर जो गांव-गांव जा रहा है वो नहीं जाता आज। शेट्टी साहब, प्रकाश अंबेडकर ने आप पे एक्यूजेशन लगाया कि प्रकाश अंबेडकर बाबा साहब ने कहा कि कांग्रेस में बहुत सुपारीबाज है और दिस इज कॉजिंग प्रॉब्लम फॉर द कांग्रेस फ्रॉम विद इन, और 3 दिन के अंदर प्रकाश अंबेडकर विल एक्सपोज द सुपारीबाज। Now, do you think the suparibaz system exists within the Congress, and is it creating more harm for the Congress than positive things? And प्रकाश अंबेडकर जी कहा कि मैं इनको आज 3 दिन के अंदर एक्सपोज करने वाला हूं।
How do you see that? Why is he reacting like this, Prakash Ambedkar ji? प्रकाश अंबेडकर जी एक बहुत ही सीनियर लीडर है और उनको मानने वाला वर्ग है। हम सब मानते हैं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को, और प्रकाश अंबेडकर जी भी बहुत अच्छे लीडर है। मगर आप जानते हैं कि जब अलायंस की बात होती है, सीट शेयरिंग की बात होती है, किधर न किधर नाराजगी भी होती है और तब हम एक्यूजिशन भी करते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि विल बी महाविकास आघाड़ी विल बी टॉकिंग टू हिम, और हमारा अभी भी बातचीत उनसे चल रहा है। पॉजिटिव आउटकम आने की उम्मीद है। Wonderful. So in effect, if you are able to work it out, it will be very difficult for the BJP-led NDA alliance over here in Maharashtra. अगर NDA की आपकी पूरी की पूरी जो सीट एडजस्टमेंट हो जाती है और अम्बेडकर साहब भी आपके साथ आ जाते हैं, तो मतलब देवेंद्र फडणवीस जी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। Because in 2019, if you remember, Yes. all big leaders like Sushil Kumar Shinde and others, they lost only because of Prakash Ambedkarji's That's party. right, Because that's they right. took a very major vote share, and I think if he comes to with the Mahavikas Aghadi in Maharashtra, it will be great for us. सर चलते चलते एक छोटा सा सवाल है, because very small question, because in Rajasthan, I keep coming back to Rajasthan again and again as a test case. In the Rajasthan assembly elections, you lost by exactly 1.8%. The difference in the vote share, I know our elections are not fought on vote share. We are first past the post. We follow the Westminster style of elections. But all the same, less than 2%, 1.8% is the difference between the votes polled for the Congress and the votes polled for the BJP. And the BJP was able to get a majority. Now my point is, what is it that the Congress can do to see to it that your candidates are first past the post? Have you worked that out, sir? See, now very important, if you remember the Rajasthan election, both Narendra Modi and Amit Shah Ji. went to Rajasthan, promised the people of Rajasthan that if you vote us to power, immediately the LPG gas cylinder price from 1200 will bring it down to 450. Yes. If you remember it very clearly. Yes. And that time, this is a burning issue. And people thought when Prime Minister of this country has promised this, and it is possible because both center and state government will be with him, double engine की सरकार, and it may be possible. That is हर जगह पोस्टर लगे थे साहब, हर जगह पे पोस्टर भी लगे थे। And these posters were put and this promise were made, and again the entire Godi media continuously ran this campaign, and it was effective because see, 1% is a very narrow margin. And if you remember, as soon as they won, the petroleum minister denied it. तो अभी हुआ कि नहीं सर? अभी लागू हुआ है? 450 का मिल रहा है सिलेंडर क्या राजस्थान में? हाँ, अभी 1100 का मिल रहा है, 100 रुपया कम कर दिया उन्होंने। अच्छा, 1200 से 1100 हो गया। 1100 हो गया, तो 450 का नहीं मिल रहा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 450 का नहीं मिल रहा है, वादा करने के बावजूद, मतलब वादा खिलाफी हुई है लोगों ये दिस इज गोइंग टू बैकफायर सर। तो ये इसके बारे में सर चलते, आई एम सो सॉरी, क्या है, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि बेंगलुरु जो है, वहां पर जब आपने प्रॉमिस किया कि महिलाओं को मुफ्त में सफर करने को मिलेगा स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेस में, उसके बाद जो टैक्सी ड्राइवर्स थे वगैरह वगैरह, वो दे वेंट ऑन स्ट्राइक पर गए। उसको लेकर के जितने भी हमारे बड़े बड़े चैनल हैं, वहां पे सम्मानीय जबरदस्त हमारे जर्नलिस्ट काम करते हैं, दे आर फैंटास्टिक, दे मस्ट बी फैंटास्टिक बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड ऑल ऑफ देम, बट देन आई एम ओल्ड, सो परहैप्स आई कैन बी एक्सक्यूज्ड, मे बी आई डोंट अंडरस्टैंड द न्यू lingo of journalism, perhaps, I don't know. I thought that journalism meant you have to, whenever you make any allegation, you have to verify it, you have to confirm it, you have to do all sorts of things before you say anything on television or in print. All of them said, what Congress promised falls flat, Congress government under pressure, this, that, all that. और उसके बाद जब वो मामला सेटल हो गया, किसी ने उसके बारे में कुछ नहीं कहा, रिपोर्ट नहीं किया, कुछ रिपोर्ट नहीं किया, वो हो गया। Mr. Siddharamaiah, Mr. D.K. Shivkumar, they all got all these people together. The transport minister also sat with them and worked out everything कि भाई आपको क्या सब्सिडी देनी है वगैरह वगैरह। लेकिन राजस्थान में जैसा आप कह रहे हैं कि 450 में अगर सिलेंडर नहीं मिल रहा, तो उसके बारे में किसी को रिपोर्ट तो करना चाहिए ना सर, कि यार राजस्थान में, अरे भाई आपने प्रॉमिस किया था, आप दो,
So why do you think that is not happening, sir? सर आपको क्या बताओ, आपको जानते हैं जो पेट्रोल प्राइस है वो आधे में देने का वादा किया था इन्होंने। जी, पेट्रोल क्योंकि 45 रुपए में बोला था, 45 रुपीज। क्योंकि बाकी का तो कमीशन जाता था कांग्रेस पार्टी को, ऐसा आरोप लगाकर और ब्लैक मनी आके 15 लाख आने वाले थे। जी। ना ब्लैक मनी आया, ना नेताजी का डेथ मिस्ट्री सॉल्व करने वाले थे नरेंद्र मोदी की, जो 18 फाइल्स बोले थे वो बाहर आने वाले थे। सर उसमें से 4 फाइल्स अभी भी लॉक्ड है। जी, 1 रैंक 1 पेंशन का पैसा देने वाले थे, 1 लाख करोड़ दिया। खुद नरेंद्र मोदी जी ने कहा, आज पता चल रहा है कि उसमें से सिर्फ 18,000 करोड़ आर्मी के पर्सनल्स को मिला है। तो मतलब खुलेआम झूठ बात कर रहे। एंड नो वन हैज, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इसका मेजर 80% पूरा नरेंद्र मोदी जी के काम कर रहे, क्योंकि इनका न्यूज चैनल पूरा का पूरा इनका जो एडवर्टाइजमेंट है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के उसमें चल रहा है। जी, आई सैल्यूट नेशन नाउ, बिकॉज आप जैसे खुद बहुत कम चैनल है और कम पत्रकार है जो बैलेंस लेके आप कर रहे हैं। Whenever Congress is wrong, you question us. Whenever BJP is there, you question. Sir, it was also said not only that, you have forgotten something else. State government. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन एक और चीज आप भूल गए सर, जो विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, वेरी क्लोज, मतलब वेरी क्लोज। आई नो इट इरिटेट्स क्वाइट अ फ्यू व्यूअर्स बिकॉज यू नो ऑल द यंग पीपल दे डोंट रिमेंबर, एंड बाय द वे आई वाज जस्ट born at that time. So the 1962 war, the Sino-Indian war, the India-China war as it is called, not Indo-China war, Sino-Indian war. Indo-China would be Vietnam. So it is called the Sino-Indian war, by the way. That is the correct terminology to be used for the India-China war of 1962. There is a Henderson-Brooks Bhagat report. ये कहा गया था कि जैसी हमारी सरकार आएगी इस रिपोर्ट को हम लोग पब्लिक करेंगे। सर क्या हुआ उसका? अरे क्या हुआ उसका यार, करो तो सही। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। आपको आप है ना 2013 का आखिरी के दिन देख लीजिए सर, उस टाइम पे एक करीबन 250 लोगों का नाम आया था, ब्लैक मनी इनका है जी। और इनका लिस्ट से केंद्र सरकार के पास था। जी जी। एंड वो ट्रीटी बना था कि गवर्नमेंट के cannot release it was called the Panama Papers or something Panama like that. Papers. That's right. And you can't release it in public. You can take tax from them. जी। And नरेंद्र मोदी जी बोले वो लिस्ट में आप लोग के सामने लाऊं। अरे आज चंदा जो भारतीय जनता पार्टी को दे रहे उसी का नाम ये लोग बाहर करने को तैयार। जो पार्टी विद द डिफरेंस बोलता था, जो पार्टी ये कहता था कि ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए और कांग्रेस को भ्रष्टाचारी पार्टी बोलता था, वो व्यक्ति आज 10,000 करोड़ रुपया चंदा ले चुका है और कोर्ट को ना इस देश के जनता को बताना चाहता है कि ये चंदा किसने दिया है। Right, but the only thing is that as far as the Henderson Brooks report is concerned, let me tell you very frankly, this is for our viewers. The Congress never promised to make it public. They said very clearly, even Dr. Manmohan Singh said it, prior to that Rajiv Gandhi also said it. They said our international relations will be spoiled if we make that report public. We can't do it. They were very sincere about it. Let's be very clear. So that's it. तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता किसी भी सरकार को कुछ वादा करना चाहिए और उसके बाद आप वादा खिलाफी करें। और जहाँ तक नेताजी का प्रश्न है, नेताजी की फाइल्स में अब वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कोई ग्रैंड नेफ्यू हैं साहब जो बीजेपी में थे, ही वाज आल्सो प्रेजिंग मिस्टर मोदी क्वाइट अ लॉट एंड ही सेड कि ये सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। यार फिलहाल उनसे अभी आप इंटरव्यू ले लो तो पता है कि कितना प्रेज कर रहे हैं जी। और बॉन्ड्स में तो मोदी जी तो वील्ड थ्रेट भी दिया था जब उन्होंने कृष्ण और सुदामा का एग्जाम्पल लेके बोले कि आजकल चीफ जस्टिस के पास कोई भी पीआईएल लेके जाएंगे, ये भी कृष्ण सुदामा, तो उसको भी बोलेंगे इट वाज अ ब्राइबरी अमाउंट एंड नॉट एक्ट ऑफ फ्रेंडशिप। दैट्स व्हाट अ वील्ड थ्रेट टू द चीफ जस्टिस। हर चीज को सनातन धर्म में चिपका देते हैं, भ्रष्टाचारी को भी उस पर कर लेंगे। सर सनातन धर्म के अगर बात करें तो अगर ऋग्वेद पे जाएं तो वहां पर तो सर बुत परस्ती बिल्कुल मना है, वहां तो आइडल वर्शिप इज बैन्ड। आप चैप्टर 32 पढ़ लीजिए ऋग्वेद का, दे से एनी मैन मेड स्टैच्यू एटसेट्रा 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 यू कैन नॉट बाउ डाउन टू। अगर सनातन की बात करें तो उसमें क्या सर? बजाज सर आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं
1947 में अपना देश आजाद हुआ। उसके बाद आपको पता है कि बिखरा हुआ देश था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, जो 16 साल वो प्रधानमंत्री रहे, इसमें बहुत देश आगे बढ़ा। उसके बाद बहुत सारा लोग, पैसे आ गए लोगों के पास, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने फेक इतिहास लिखना शुरू किया। जी आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं जाते जाते। मैं वो इंटरेस्टिंग चीज इसलिए कह रहा हूं कि आप दिल्ली में जाते हो तो आपको चाणक्य रोड मिलेगा, चाणक्य पुलिस स्टेशन मिलेगा, चाणक्यपुरी, जी चाणक्यपुरी पुलिस स्टेशन मिलेगा। मगर आप इतिहास में देखोगे तो जो चंद्रगुप्त मौर्य का जब राज्य था तब अलेक्जेंडर के साथ सेल्यूलस था, सेल्यूकस द सेकंड, ही वाज द रूलर, मिनिस्टर था जी। उसकी डॉटर के साथ चंद्रगुप्त मौर्य जी की शादी हुई। जी जब शादी होती है तो आप जानते हैं कि बहुत सारे लोगों को उनके सेवा के लिए रखे गए, जी। उसमें से कुछ लेखक थे, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का बारे में लिखा, राजपाट के बारे में लिखा। उस समय जाति समीकरण नहीं थी, क्लासेस थे, कास्ट नहीं था। जी उन्होंने पीछे जाकर वापस वो सब चीज लिखा गया, वो आज भी है पूरे इतिहास में, किधर भी चंद्रगुप्त मौर्य जी का है, सब कुछ बारे में है, ट्रेडर्स के बारे में है, लोग कैसे काम करते हैं उस तरीके पे, किधर भी उन्होंने, वेरी सरप्राइजिंग, आई डोंट नो व्हाई, चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य जी का किधर जिक्र उसमें नहीं है जी, नहीं, आई डोंट नो व्हाई। Even Seleucus's ambassador to Chandragupta's court, Megasthenes, does not mention Chanakya in I his don't know diary. why. In his diary, yes. So this is the thing, sir. But in any event, but that's for historians. The next episode will definitely talk about. That is for historians. But all the same, all the very best to you. I hope the Congress does well. We need a very good opposition, but you, of course, are very confident that you are going to win this time. Whatever it is, all the very best to you. Democracy needs a good contest, a very good contest between competing And ideologies. this election will be really surprising, and you will see whatever propaganda Godi media is doing, the result will be surprising. 52 to 272 is going to be one of the greatest wonders and wonderful achievement, Sharif Saab. Fantastic. If it happens. It'll happen. The way they are, all the very best. Congress is confident. In Hyderabad, you can see in Telangana, from 4 to we have made the government there. Yes. Similar Yes, you had 4 seats. result you will see here in this country. Yes. Wonderful. So, sir, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में मिरेकल होता ही है. This is a land of miracles. Right. Thank you so much, sir. नमस्कार. Thank you. Thank you. वंदे मातरम, sir. वंदे मातरम. Thank you. Jai Hind. Jai Hind. Jai Hind, Jai Hind. And I hope it happens. I hope, as far as the government is concerned, I hope They give a fight at least. it gets a good opposition. I don't really see Mr. Modi losing, very frankly speaking. I don't think Mr. Modi is going to lose because he's too far ahead at the moment. But I hope the Congress is able to put up a very good fight. And we get a very strong opposition in Parliament. In any event, at the moment, from the Sharat Chandra Pawar